Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. I am a science teacher in KPS class 7 subject science topic particles lecture number 9. Students, in this lecture we will discuss evidence for the particle model. Students, we know matter is made up of particles. There are three states of matter: solid, liquids and gases. All these states are made up of particles. Students, there are many evidence for the particle model. Process that prove particle exist in matter. Particles that exist in matter are atoms, molecules and ions. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मैटर पार्टिकल से बना होता है. इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मैटर में पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं? उसके लिए बहुत सारे एविडेंस हैं, जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ब्रोनियन मोशन. इनसे हम प्रूव कर सकते हैं कि मैटर में पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, have you ever noticed how a balloon always goes down after a while? No matter how tightly the balloon is tied, the air inside always seems to escape. Student, balloon itself is a matter. We know matter is made of particles and there are spaces between particles. So student, balloons can have holes in itself because balloon is made up of particles. Students, हमें पता है कि बैलून एक मैटर है जो पार्टिकल से बना है. पार्टिकल्स में स्पेसेस होती हैं, इसी वजह से बैलून की स्किन में टिनी होल्स होते हैं. जब हम बैलून में एयर फिल करते हैं उसे टाइटली टाई कर देते हैं, लेकिन 1 वीक बाद अगर हम ऑब्ज़र्व करें, हम देखते हैं कि फ्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स एस्केप्ड थ्रू द होल्स बिकॉज बैलून स्किन हैज़ टिनी होल्स इन इट. बिकॉज पार्टिकल हैज़ स्पेसिस बिटवीन themselves, so balloon skin has tiny holes in it. Air is made up of millions of tiny moving molecules. Because air is made up of tiny and moving molecules, so air molecules escape through these tiny holes and air escape through the balloon. This shows that particles exist. एयर भी एक मैटर है, बैलून एक मैटर है. एयर के मॉलिक्यूल स्मॉलर होते हैं उन होल से जो बैलून की स्किन में मौजूद होते हैं, इसलिए एयर एस्केप कर जाती है और इसी वजह से बैलून का साइज़ कम हो जाता है. ये शो करता है कि पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं. एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग. स्टूडेंट्स, वी नो दैट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स by which we can prove that air particles or other particles are always moving. For example, students, smell of food when cooked in the kitchen and smell of perfume spread due to diffusion of perfume vapors into the air. This is the evidence that particles are always moving. स्टूडेंट्स, इसको हम बाय एक्सपेरिमेंट प्रूव कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑलवेज मूव करते हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम एक बीकर में वाटर लेते हैं, उसमें ड्रॉप ऑफ इंक इंक के ड्रॉप को अगर हम वाटर के सेंटर में केयरफुली पुट करते हैं, देन आफ्टर सम टाइम वी will observe ink particles gradually diffuse outward to mix completely with the water molecules. Students, in this diagram you can see कि हमने एक बीकर में वाटर लिया, उसमें इंक का ड्रॉप वाटर के सेंटर में पुट किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद बीकर में मौजूद सारा पानी इंक का कलर शो कर रहा है, क्योंकि इंक के पार्टिकल्स मूव करते हैं
और पूरे बीकर में स्प्रेड हो गए हैं, जिसकी वजह से वाटर का कलर चेंज हो गया। ये एविडेंस है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। मोर एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर मूविंग। Students, we know particles of smoke suspend in air. If we fill a small glass container with smoke called a smoke cell, and we eliminate from one side on the stage of microscope, then we observe the hundreds of tiny bright specks moving about in all directions on microscope lens. These bright specks are smoke particles. This shows particles move. These particles are bombarded by moving molecules in the air. स्टूडेंट, जब हम स्मोक को एक स्मॉल ग्लास कंटेनर में फिल करते हैं और उस स्मॉल कंटेनर की एक साइड को इलेमिनेट करते हैं तो हम माइक्रोस्कोप के लेंस पे बहुत सारे ब्राइट स्पेक को ऑब्जर्व करते हैं। ये ब्राइट स्पेक स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं तमाम डायरेक्शंस में। ये मूव इसलिए करते हैं क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं। बॉम्बार्डमेंट की वजह से ये मूवमेंट शो करते हैं। इस टाइप की मूवमेंट को ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं। The erratic random movement of microscopic particles in a liquid as a result of continuous bombardment from molecules of the surrounding medium. Student, अगर कोई भी मीडियम में हम किसी और मैटर के पार्टिकल्स या कोई मटेरियल ऐड करते हैं, दोनों मटेरियल के पार्टिकल्स की कोलाइड या कोलिजन या बोम्बार्डमेंट की वजह से जो मूवमेंट शो होती है, रैंडम मूवमेंट होती है, इस मोशन को हम ब्रोनियन मोशन कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रेड कलर के पार्टिकल्स वाइट कलर के पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की वजह से मूवमेंट शो कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। इस मोशन को हम ब्रोनियन मोशन कहते हैं। एविडेंस फॉर स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, वी नो दैट देयर आर स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स इन केस ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज। Students, if we take 30 cubic centimeter of water, add into 30 cubic centimeter of alcohol, total volume is less than 60%. Why is this so? Students, जब हम 30 cubic centimeter वाटर को ऐड करते हैं 30 cubic centimeter of alcohol में, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं वहाँ पे फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम कम हो जाता है। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स का साइज़ कम होता है अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स की निस्बत। सो जो एयर अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस होती हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स उन स्पेसिस में फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम कम हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पी और 50 क्यूबिक सेंटीमीटर राइस लेते हैं तो टोटल वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं, ये 85 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। स्टूडेंट, क्योंकि पी का साइज़ बड़ा होता है, इनके दरमियान स्पेसिस होती हैं, राइस स्मॉल साइज़ होते हैं, और जो स्पेसिस होती हैं पी पार्टिकल्स के दरमियान राइस वहाँ फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम कम हो जाता है। द राइस फिट्स इन टू द स्पेसिस बिटवीन द पी मेकिंग द टोटल वॉल्यूम स्मॉलर। इससे शो होता है कि पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिस होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है जिसे आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।